जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 19। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधानयतः कुरु श्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य मे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कुरु श्रेष्ठ, तुमने मेरी विभूतियों के संबंध में प्रश्न किया है, परंतु मेरी विभूतियां अपार हैं। वे इतनी अधिक हैं कि स्वयं मैं भी उनका आकलन नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई नहीं बतला सकता कि उसके अपने शरीर पर कितने रोम हैं, उसी प्रकार मैं अपनी विभूतियां भी नहीं गिना सकता। असीम और अनंत की गिनती कौन करा सकता है? इसलिए मैं तुम्हें अपनी केवल मुख्य विभूतियां ही बतलाऊंगा। भगवान के अनंत होने के कारण उनकी विभूतियां भी अनंत हैं। जैसे हमारी मानसिक कल्पना का अंत नहीं है, उसी प्रकार यह अनंत विस्तृत जगत, इसके अणु प्रमाणु पर्यंत सब भगवत विभूति हैं। वे सब भगवान के मन से उत्पन्न हैं। इस बाहुल्य का क्या अंत है? ये सप्त अधोलोक और सप्त ऊर्ध्वलोक, इनके फिर कोटि कोटि जीव। इतना ही नहीं, इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, इस प्रकार के कोटि कोटि ब्रह्मांड उनके भीतर न्यस्त हैं। उनकी विभूति का अंत कहाँ है? अनंत जीवों का यह मेला उन्हीं का प्रकाश है। वाणी द्वारा क्या उसका वर्णन शेष हो सकता है? जैसे आमने सामने दो बड़े दर्पण रखकर उनके बीच में खड़ा होने पर एक मैं ही अनगणित संख्या में देखा जा सकता हूँ, इसी प्रकार माया दर्पण में प्रतिबिंबित होकर एक आत्मा ही नाना रूपों में दिख रहा है। इसको न जानकर आभास चैतन्य रूप जीव मुग्ध हो अपने को आप देखकर बार बार विस्मित हो रहा है। दोनों दर्पणों को हटा दो, मन की कल्पना को रोक दो, तब देखोगे कि उस स्थिर अव्यक्त आत्म भाव के भीतर अनंत चांचल्य रूप जगत प्रपंच समाया हुआ है। Pity. Now I will declare to you my divine glories, immanent in their prominence. O best of the Kurus, there is no end to the details of my extent, even though there is no end to the infinite variety of the self's manifestation in plurality, where it projects out either through the total mind, Ishvara, or through the individual mind, Jiva. The All-Merciful undertakes to explain to Arjuna, totally self-surrendered disciple, his pervading power divine, only those that are most important. Lord promises that he shall indicate through such carefully chosen examples the vital spots and instances at which divinity is peeping out the clearest. Om. గీతా సుధ అధ్యాయం 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 19. శ్రీ భగవానువాచ హంతతే కద ఇష్యామి దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయః ప్రాధాన్యతః కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్యత్మే. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా అన్నాడు, హే కురుశ్రేష్ఠ, నీవు నా విభూతుల గురించి ప్రశ్నించావు. అయితే నా విభూతులు అపారము. అవి ఎంత అధికమంటే స్వయంగా నేను కూడా వాటిని లెక్క పెట్టలేను. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి తన శరీరం మీద ఎన్ని రోమాలు ఉన్నవో అన్నది అతడు ఏ విధంగా చెప్పలేడో, అదేవిధంగా నేను కూడా
నా విభూతులను లెక్క పెట్టలేను. హద్దులు లేని అనంతమైన వాటిని ఎవరు లెక్కించగలరు? అందువల్ల నేను నీకు కేవలము నా ముఖ్యమైన విభూతులను మాత్రమే తెలియజేస్తాను. భగవానుడు అనంతుడు గురించే అతని శక్తులు కూడా అనంతమే. ఏ విధముగా మన మానసిక కల్పనలకు అంతం లేదో అదే ప్రకారంగా ఈ అనంత విస్తృత జగత్తు, దీని అణువు పరమాణు వరకు గల భగవద్విభూతులు భగవాన్ని మనసు నుండి ఉత్పత్తి అయ్యాయి. అటువంటి ఈ సమృద్ధికి అంతం ఏది? 7 అధోలోకములు మరియు 7 ఊర్ధ్వలోకములు, తిరిగి వీటి మధ్య కోటానుకోట్ల జీవులు. ఇంతే కదా, ఇంకా ఇంతే కాదు, ఇంత పెద్ద బ్రహ్మాండమే ఏదైతే ఉన్నదో ఈ విధమైన కోటానుకోట్ల బ్రహ్మాండములు ఆయనలో ఉన్నాయి. ఆ భగవానుని విభూతికి అంతం ఎక్కడ? అనంత జీవుల ఈ మేళ ఆయన ప్రకాశమే. వాక్కుతో ఆ విభూతి వర్ణన ముగుస్తుందా? ఎదురెదురుగా 2 పెద్ద పెద్ద దర్పములు ఉంచి వాటి మధ్యలో నిలబడి చూసినట్లయితే ఒక్కడనే అనేకమైన సంఖ్యలో ఎలా చూడబడతానో అదేవిధంగా మాయా దర్పణములో ప్రతిబింబించబడిన ఒక్క ఆత్మే అనేక రూపముల్లో కనిపిస్తున్నది. ఇది తెలియక ప్రకాశము చైతన్య రూపి అయిన జీవి మోహము నుండి తనను తాను దర్శించుకొని మాటి మాటికి విషయం పొందుతున్నాడు. అయితే ఈ 2 దర్పణాలను తొలగించు, మానసిక కల్పనను నిరోధించు. అప్పుడు ఆ స్థిర అవ్యక్త ఆత్మభావము లోపల అనంత చంచల రూప జగత్తు ప్రపంచం ఉన్నట్లు నీకు చూడగలుగుతావు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరింది. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసాద్. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 10, ശ്ലോകം 19. ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയാ പ്രാധാന്യതഃ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യമേ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠനായ അർജുന, എന്റെ ദിവ്യമായ വിഭൂതികളെക്കുറിച്ച് നീ ചോദിച്ചു. എന്നാൽ എന്റെ മഹിമകൾക്കും വിഭൂതികൾക്കും അളവോ അവസാനമോ ഇല്ല. അതിനാൽ അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് മാത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അനന്തമാണ്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഓരോ അണുവും, ഓരോ ജീവനും, ഓരോ ശക്തിയും അവിടുത്തെ വിഭൂതികളുടെ പ്രകടനമാണ്. 7 അധോലോകങ്ങളും 7 ഊർധ്വ ലോകങ്ങളും അനവധി ജീവജാലങ്ങളും കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും എല്ലാം അവിടുത്തെ മഹാശക്തിയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. 2 വലിയ കണ്ണാടികൾ തമ്മിൽ നേർക്കുനേർ വെച്ച് അവയ്ക്കിടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരേ രൂപം അനന്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നത് പോലെ ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവാണ് മായയുടെ കണ്ണാടിയിൽ അനേകം രൂപങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ സത്യം അറിയാതെ ജീവൻ പലതായി വിസ്മയിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യം ശമിക്കുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും പിന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഏകവും അവ്യക്തവും അനന്തവുമായ ആത്മസത്തയെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम. श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. श्री कृष्ण अर्जुन से कहलखिन, हे कुरुश्रेष्ठ, अहाँ हमर विभूति सबके संबंध में प्रश्न केने छी, मुदा हमर विभूति सब अपार अछि, ओ एतेक बेसी अछि जे स्वयं हमहू एकर आकलन नहीं क सकैत छी. जेना केओ ई नहीं कहि सकैत अछि जे ओकरा अपना देह पर कैकटा रोइयां अछि, ओहिना हम अपन विभूति सबके नहीं गनि सकैत छी. असीम आ अनंत के गिनती के क सकैत अछि, तें हम खाली अपन मुख्य विभूति सबके वर्णन करब. भगवान अनंत छथि, एहि कारण हुनकर विभूति सब सेहो अनंत अछि. जेना हमर सबके कल्पना के कोनो अंत नहीं अछि, ओहिना ई अनंत विस्तृत जगत आ एकर अणु परमाणु सब किछ भगवान के विभूति अछि. ई सब भगवान के मौन से उत्पन्न भेल अछि. एहन अपार विस्तार के अंत कतऽ अछि? ई 7टा अधोलोक आ 7टा ऊर्ध्वलोक आ फेर ओहि में बसऽ वाला कोटि कोटि जीव. आ यह नहीं,
ई विशाल ब्रह्मांड आ एहन कोटि कोटि ब्रह्मांड ओकरे भीतर स्थित अछि। तखन ओहि विभूति के अंत केना भेटत? अनंत जीव सबके ई विराट मेला ओहि विभूति सबके प्रकाश अछि। वाणी सँ एकर संपूर्ण वर्णन केना संभव भऽ सकैत अछि? जेना दूटा पैघ एना के एक दोसर के सोझा में राखि कऽ ओकर बीच में ठाढ़ भऽ गेला पर एके व्यक्ति के अपन असंख्य रूप दिखाई पड़ैत अछि, ओहिना माया रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भऽ कऽ एके आत्मा नाना रूप में प्रकट भऽ रहल अछि। एहि तत्व के नहि जानि कऽ आभास चैतन्य रूप जीव अपना आप के देख देख कऽ मोहित भऽ जाइत अछि आ बेर बेर विस्मित होइत रहैत अछि। जँ एहि दुनू एना के हटा देल जाय, माने मोने के कल्पना के रोकि देल जाय, तऽ दिखाई पड़त जे ओहि स्थिर अव्यक्त आत्म भाव में ई संपूर्ण अनंत चंचल जगत प्रपंच पैसल अछि। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 10 श्लोक 19. श्री भगवान म्हणतात, श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, हे कुरुश्रेष्ठ, तू माझ्या विविध रूपाविषयी प्रश्न विचारला आहेस, पण माझी रूपे अफाट आहेत, ती इतकी असंख्य आहेत की मी स्वतः सुद्धा त्याचा अंदाज लावू शकत नाही. जसे कोणी आपल्या अंगावर किती केस आहे ते कसं सांगू शकत नाही, त्याचप्रमाणे मी सुद्धा माझ्या विविध रूपांची गणना करू शकत नाही. अमर्याद आणि अनंत गोष्टींची गणना कोण करू शकेल? म्हणूनच मी तुला केवळ माझी मुख्य रूपे सांगेन. कारण ईश्वर अनंत आहे, त्याची रूपेही अनंत आहे. जसे आपल्या मानसिक कल्पना शक्तीला सीमा नसते, त्याचप्रमाणे असीम विशाल विश्व अगदी त्याच्या अणु आणि रेणूपर्यंत ईश्वराच्या वैभवाचे प्रगटीकरण आहे. हे सर्व ईश्वराच्या मनातूनच उत्पन्न होते. या विपुलतेचा अंत काय आहे? हे 7 अधोलोक आणि 7 ऊर्ध्वलोक आणि मग अब्जावधी जीव. इतकेच नव्हे तर हे विशाल विश्व ज्यात कधी अब्जावधी विश्व समावलेली आहेत आणि त्याच्या वैभवाची अमर्याद सीमा आहे का? हा अनंत जीवांचा समुदाय म्हणजेच त्याचे तेज आहे. त्याचे शब्दात वर्णन करता येईल का? ज्याप्रमाणे एकमेकासमोर असलेल्या 2 मोठ्या आरशामध्ये उभे राहिल्यावर तो एक आत्मा अगणित रूपात दिसतो, त्याचप्रमाणे मायेच्या आरशात प्रतिबिंब झाल्यावर तो एक आत्मा विविध रूपात प्रकट होतो. याची जाणीव नसलेला तो जीव वसमान चेतनेच्या रूपात स्वतःच्या आत्मप्रतिबिंबाने वारंवार मोहित आणि आश्चर्यचकित होतो. ते दोन्ही आरसे दूर करा, मनाची कल्पना शक्ती थांबवा, मग तुम्हाला दिसेल की जगाचे शाश्वत बदलणारे स्वरूप त्या स्थिर अव्यक्त आत्म्यामध्ये समावलेले आहे. अरे रे, आता मी तुला माझ्या दिव्य वैभवाचे वर्णन करीन, जे त्यांच्या प्रमुखतेत अंतर्भूत आहेत. हे कुरुश्रेष्ठा, माझ्या विचारांच्या तपशिलांचा अंत नाही. जरी आत्म्याच्या अनेक विविध प्रकटीकरणाच्या अनंत विविधतेला अंत नाही, जिथे तो समग्र मनाद्वारे ईश्वर किंवा वैयक्तिक मनाद्वारे जीव प्रकट होतो, तरीही सर्व दयाळू परमेश्वर पूर्णपणे आत्मसमर्पण केलेल्या शिष्य अर्जुनाला आपल्या सर्वव्यापी दिव्य शक्तीचे केवळ सर्वात महत्वाचे प्रकटीकरणच समजावून सांगण्याचे वचन देतो. भगवान वचन देतात की अशा काळजीपूर्वक निवडलेल्या उदाहरणाद्वारे तो ती महत्वपूर्ण स्थळे आणि प्रसंग दर्शवतील जिथे देवत्व सर्वात स्पष्टपणे प्रकट होत आहे. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.